Hello, good evening, assalamu alaikum, and welcome to the Pavilion. आप देख रहे हैं Sports and Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023. It has been a fantastic but a long journey. And we finally got a day off yesterday. But here we are. Tonight is a special evening because tomorrow is the first semi-final. We're going to talk about a lot of things that have happened on this road. Before that, let me bring into the conversation four of my very special guests, my friends, who I've had the privilege of sharing this space with. Four former captains of Pakistan, outstanding gentlemen who serve the game of cricket and served Pakistan really well. First up, I've got a captain who played spin bowling really well, still does actually. A great runner between the wicket, captain Pakistan to many successes. Shoaib Malik, also a great fielder. Shoaib, good evening and assalamu alaikum. Good evening, walaikum salam, assalamu alaikum everyone. Next up, Mr. Dependable, a man who kept the batting order in order during his era. One of the most successful test captains in Pakistan's test cricket history. Misbah, good evening, assalamu alaikum, Misbah. Good evening, walaikum assalam and assalamu alaikum to everyone. Next up, 2 straight thumbs and 8 crooked fingers. We call him lovingly the silver fox of the pavilion. But he was also known as a man of crisis, kept the wickets for Pakistan and also captained Pakistan to many successes. I've got Moin Khan. Good evening, assalamu alaikum. Good evening, walaikum salam, Fakhar, thank you. Assalamu alaikum everyone. एंड फाइनली दोस्तों, पिदी फुल चुन के पिदी टी करके पिदी फुल चुने के बानी, उसको तहरीर करने वाले, उसको हमें इंट्रोड्यूस करने वाले शायर भी हैं, रैपर भी हैं और उसके साथ साथ कलाकार हैं, फनकार हैं, अदाकार हैं, बॉक्सिंग चैंपियन भी अब आप देख चुके हैं कि वो बन चुके हैं. सो दोस्तों, I've got the legend himself, the sultan of swing, the king of all rounders, Wasim Akram. Good evening and assalamu alaikum. Good evening, बहुत शुक्रिया आपका, अस्सलाम वालेकुम everyone और आपकी तारीफ का बहुत शुक्रिया. आपकी ज़रा नवाजी है. अरे वाह, ठीक है, बिल्कुल सही है. तनख्वाह के बारे में सोचो. हाँ, ए स्पोर्ट्स के सदर हैं आप, मैं भूल गया. तनख्वाह रेज द टाइम. तारीफ जी जी, है ना? पता है तो सब याद है. सब याद है. वो कह रहे हैं सब याद है. All right, folks, I hope you're all well rested. कल का दिन ऑफ था. Yeah, we had 2 days off. Day and आज का भी दिन सारा ऑफ ही था. आज का भी सारा ऑफ था. It was a long, hard trip. Tough था. In the beginning, जब शुरू हुआ था World Cup, I thought मुक्केगा ही नहीं. But now we're almost there. Yeah. 3 games to go, 2 semis and a final. Teams are ready to go. And I think I had a ball. I would like to thank every one of you to making my journey very easy and comfortable and fun. Well, thank you for being such a sport in every manner. Misbah, rested? रेस्टेड नहीं, ट्रेनिंग की है. जी बिल्कुल, ट्रेनिंग. आज तो आप समंदर में डुबकियां लगाते रहे हमारे साथ, तो उसके बारे में बताएंगे. बट मे बी टुमारो इन द मैच, पोस्ट मैच, वी कैन शो यू सम ग्लिम्पसेस ऑफ दैट. मोइन, हाउ हैव यू बीन? वेरी गुड जी, बहुत मजा आया. फर्स्ट टाइम, बट आई रियली फेल्ट वेरी गुड. बहुत मजा आया. You know, स्पेशली वसीम भाई ने जिस तरह एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ था पवेलियन के, वाज वंडरफुल. माहौल बनाने में, माहौल आपको टीम में भी ऐसी रहता है. आपको मजा लेने का बहुत शौक है. भाईजान वैसे ही माहौल बड़ा अच्छा बनाते हैं और जहाँ जाते हैं माहौल बना लेते हैं. तो that's the incredible thing. And for you, Shoaib, all good, buddy. Had a good rest. Yeah. Or thank you for taking us for that. I think diving trip and all. Yeah, I'm glad. Great experience. And thank you, Wasim bhai. Yeah. बहुत मजा आया. बड़े मजे के सैंडविचेस थे. Yeah, you're welcome. We will talk about this tomorrow, ना? जब सेमीफाइनल के बाद पोस्ट मैच में आएंगे. कल बड़ा जबरदस्त पोस्ट मैच होगा, कल इस पे बात करें. But it has been a long journey and a fantastic one. Again, as I said, you can see we've had such a wonderful relationship, the 4 or 5 of us together working in each other's presence and consistently making sure कि हम कोई मौका ना जाने दें दूसरे को रगड़ा देने का. And I think this is the first time in the history of television, I reckon, sports television in our part of the world, आपस में लड़ाई नहीं हुई. आपस में आई थे नहीं, लड़ाई तो बड़ी हुई है मेरी और मिसबा की पराठों पे और खाने पे. इतनी दफा बोटियों पे लड़ाई होती रही है इसकी मेरी साथ में, मुसलसल उसका वो चलता रहे. You guys are बोटी killers. बाउंसर्स कराए. वो अगले ने मेरा सर उतारने की कोशिश की. नहीं, वो तो रिक्वेस्ट थी मेरी तरफ से. लड़ाई कदा नाल नहीं होती, हौसले नाल होती.
Good one. Good one. It has been a spectacular journey for all the teams. Let's take a look where we are now. Here is the road to the finals. We've got these two semi-finals coming up. पहला semi-final कल आपकी खिदमत में मुंबई से आएगा. बराह रास्त हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे. It's India versus New Zealand. And then the second semi-final, which is in Kolkata, it's South Africa versus Australia. And the two winning teams will then clash on the Sunday, 19th November in Ahmedabad for the grand final. And we will find out who wears the crown. It has been a great journey, Wasim. Let's talk about all the great new talent that we've seen in this Yeah, absolutely. It has been an amazing journey for all the young players who participated from their respective countries. काफ़ी player उसमें आए हैं. आप one by one बताएंगे. We'll talk about them. But yeah, it's good to see some young talent. Let's talk about Rachin Ravindra because we'll see him in action tomorrow again against India. But what a find he has been. Yeah, we spoke about him in length during the पूरे महीने में हमने उसकी बात की है और क्या ज़बरदस्त performance दिया उसने. Complete player लगता है, can give you 10 overs as well in one day cricket. And look at his World Cup record, unbelievable. Look at the average there, healthy average, almost 71. And again, another very incredible stats as long as his strike rate concerned. And look at the 100 corner. Misbah, yeah, Misbah, 300s. Amazing, yeah. 3 centuries. And you know this guy, अगर केन विलियमसन और माइकल ब्रेसवेल फिट होते शुरू में केन विलियमसन तो ये होता ही ना इस टीम उसको मौका ही नहीं मिलता. बिल्कुल ऐसी बात है. That's just he got the opportunity and he nailed it. He grabbed it with two hands, not just with one hand. मैं नहीं जाने. वसीम भाई देखें कि पहले 3 नंबर पे पहले 3 नंबर खेले, फिर कप्तान फिट हुए, ओपनर गए, फिर 3 नंबर खेले, फिर ओपनर गए. उसके बावजूद देखें he's been like so consistent throughout the World Cup. So this is a kind of prime example for any young youngster, especially in our part of the world, कि नंबर चेंज करना is probably a बहाना कि जी स्कोर नहीं हुआ मेरा नंबर नहीं सी. But nowadays आजकल की क्रिकेट में आपको हर नंबर पे बैटिंग करनी आनी चाहिए. If you are playing purely as a batsman. I know, I love this, Wasim. आप हर दफा कहते हैं कि अगर आप बैट्समैन हैं, you should be able to bat at any number. और अगर आप बॉलर हैं तो नया गेंद, पुराना गेंद, किसी भी सिचुएशन में. Yeah, especially is this day and age. I can understand 25, 30 years ago different mindset था, but अब तो all round cricketer चाहिए, all round batter, all round bowler. ये जो बॉलर है इनको भी थोड़ी बैटिंग सीखनी पड़ेगी. ये नहीं कि उनको आती नहीं है. मजे की बात यह है कि जैसा पेस के अगेंस्ट अच्छा खेलते हैं और टॉप पे बैटिंग करते हैं पहले 2-3 नंबर्स में, उतना ही अच्छा स्पिन को भी खेलते हैं. बिल्कुल ऐसे. तो और उन स्पिन को अच्छा खेलने के लिए आई थिंक ही इज बीन टू इंडिया, ही प्लेड लॉट ऑफ क्रिकेट इन इंडिया. सो आई गेस उन्होंने खुद इनिशिएटिव लिया इस चीज़ का कि यार मैंने सिर्फ पेस के अगेंस्ट नहीं खेलना. न्यूजीलैंड कंडीशंस में पेस के अगेंस्ट आप अच्छा खेलते हैं, लेकिन ही वेंट टू इंडिया, he worked hard on his batting as well as his spin. सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखें स्किल तो आपके पास है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेंटल टफनेस क्या है, आपका टेम्परामेंट कैसा है. इतने बड़े टूर्नामेंट में आप आए हैं, आपको पता है वो टेम्परामेंट आइदर इज नेचुरल के यू हैव इट और यू कैन इम्प्रूव ऑन इट. यू कैन इम्प्रूव. आई थिंक इट्स ऑल अबाउट, ये भी प्रैक्टिस है आपकी. मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे आप फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं या आप स्किल की प्रैक्टिस करते हैं, ये जो माइंड की भी आपने प्रैक्टिस करनी है. अपने आप को मुश्किल सिचुएशंस में प्रैक्टिस करनी है, मुश्किलों में डालना है. आप अगर इजी सिचुएशंस ढूंढेंगे ना, नीचे भी क्रिकेट खेलते हो ज़िंदगी में, इजी ऑप्शंस ढूंढेंगे तो फिर मुश्किल में आपसे परफॉर्मेंस नहीं होनी. आप अपने आप को मुश्किल में डालें, प्रैक्टिस हो जहाँ पे भी हो, तो फिर ऑटोमेटिकली यहाँ आप जब बड़े मैचेस में जाएंगे यू आर रेडी. बेसिकली मेंटल टफनेस जो है वो इस तरह भी आती है कि जब आप कोई ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं या आप बैटिंग कर रहे हैं या आप बॉलिंग कर रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो जिसमें जब आपका दिल करे ना कि यार अब मेरी बस हो गई है, नहीं उस वक्त बस नहीं करानी, उस टाइम को बस को आगे लेके जाना है. क्या फिर आपकी जो है ना मेंटल टफनेस वो आगे बढ़ेगी. प्रोसेस भी इम्पोर्टेंट है. जूनियर लेवल की क्रिकेट खेल के आए हुए तो आप स्टेप बाय स्टेप जब बढ़ते हैं अपने अल्टीमेट गोल की तरफ जहाँ पे आपको परफॉर्म करना, तो आई थिंक उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है. कि स्टेप बाय स्टेप जब आप डेवलप हो रहे होते हैं, बिल्कुल प्रेशर वाइज भी, इवन योर फिटनेस वाइज भी. वो बस को धक्का लगाने की आपने बात की, तो मुझे भी जरा बस को धक्का लगाना है और मुझे ब्रेक लेनी है. सो वी विल टेक अ ब्रेक हियर, बट व्हेन वी कम बैक मोर टू टॉक अबाउट. स्टे विद अस.
Welcome back to the Pavilion. We have a special edition here for you tonight, a precursor to the semi-finals. But we're taking a look at the road that led us here and all the journeys that have come together to form this great World Cup. Now, हम लोग break पे जाने से पहले रचिन रविंद्रा की बात कर रहे थे वसीम, but let's go into the Afghanistan team. Great campaign that they had, but what a great all-rounder they have found in Azmatullah Omarzai. और इनकी उनको ज़रूरत थी बड़ी मिडिल ऑर्डर में. एक तो उसने स्कोर भी किया 300 प्लस, फिर विकेटें भी लिए हैं और इसने यहाँ से इम्प्रूव भी होना है एज अ क्रिकेटर. एंड आई थिंक अफगानिस्तान ने हम सबको क्या पूरी दुनिया की क्रिकेट को उन्होंने इम्प्रेस किया है. ये 9 innings, runs 353, average 70 plus, strike rate 97.78, best 97, not out. अगर 100 हो जाता तो बहुत अच्छा हो जाता. इस वर्ल्ड कप में 350 किए. आई प्लेड विद हिम ड्यूरिंग बांग्लादेश प्रीमियर लीग. मेरे ख्याल में लास्ट ईयर की ये बात है. और तो उसमें ही वॉज स्ट्रगलिंग क्योंकि आई बैटेड विद हिम इन कपल ऑफ गेम्स. तो ही वॉज काइंड ऑफ क्लूलेस कि कैसी सिचुएशन है, इसको कैसे डील करना है. बट अगर मैं उस टाइम का उमरज़ई देखूं और अब वर्ल्ड कप में कंपैरिजन करूं तो मैसिव डिफरेंस. सो आई गेस ही इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. मैच्योर इनिंग्स के लिए बिल्कुल. और हम इनको नया बॉल वहाँ करवा रहे थे. हमने देखा भी कि उन्होंने एक मैच में नया बॉल किया, दोनों तरफ उन्होंने स्विंग किया. सो ही इज़ गॉट टैलेंट. अब बस यही है कि जिस तरह इम्प्रूवमेंट वाला प्रोसेस उनका चल रहा है और ह्यूज जो है इम्प्रूवमेंट है फ्रॉम लास्ट ईयर टिल नाउ. अब्दुल्ला शफीक फॉर पाकिस्तान, ग्रेट फाइंड मोइन, और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने सेंचुरी भी की इस वर्ल्ड कप में. जी हाँ, अब्दुल्ला शफीक जिस वक्त फ़खर आउट ऑफ फॉर्म हुए थे तो उस वक्त ये बातें पाकिस्तान क्रिकेटर्स जो है वो करना शुरू हो गए थे कि अब्दुल्ला शफीक को टीम में लेके आना चाहिए. एंड देन ही मेड इट कम बैक इन द एशिया कप में आए. उन्होंने आते ही एक यहाँ 50 की थी. इस वर्ल्ड कप के अंदर भी 8 इनिंग्स खेली है, 336 रन किए हैं. एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो सेंचुरी बनाई थी वाइल चेजिंग. जी 350s में वाइल चेजिंग अगेंस्ट श्रीलंका वाज आई थिंक वंडरफुल इनिंग. बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, बहुत समझदार. जो कहते हैं ना कि टाइम पे जिस वक्त ज़रूरत होती है ना उस वक्त ये एग्रेसिव मोड में भी आ जाते हैं. आई थिंक इज़ अ गुड हिटर एज वेल. बहुत ही अच्छा प्लेस करता है गैप्स के अंदर शॉट्स. क्वालिटी वेरी कंपोज्ड में कि इनको ना सिर्फ 2 फॉर्मेट्स की हदूद तक रखना चाहिए. ओडीआई क्रिकेट एंड टेस्ट क्रिकेट. T20s की तरफ ना लाया जाए. That's how or what I think. That's what would you agree with that, Misbah? कि इनको T20 की तरफ ना लाया जाए? लेकिन डिपेंड करता है ना कि आप कौन किस रोल में खेल रहे हैं. आप लाहौर कलंदर से वो खेल रहे हैं और अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसे प्लेयर को बताने वाली है वो ये है कि आप रिलाई करें अपनी क्रिकेटिंग शॉट्स पे. देखें रोहित शर्मा भी खेल रहा है, विराट कोहली भी खेल रहा है. दे आर वेरी गुड बैट्समैन टेक्निकली एंड दे आर इक्वली सक्सेसफुल. जिसकी बेस स्ट्रॉन्ग है. एक चीज़ ज़रूर है, मैं अभी भी समझता हूँ कि जैसा स्टार्ट मिला था अब्दुल्ला को, अब्दुल्ला ने कम रन्स किए हैं. वरना ये भी वो बैट्समैन था कि जो 500 रन्स कर सकता था. वो टीम सिचुएशन ऐसी बन गई, थोड़े से मैचेस ऐसे इस किस्म के हुए कि जिसमें वो उसी फ्लो में 40 आई थिंक ये जो जिस तरह की कंडीशंस थी ये भी 70-80 की एवरेज वाला बैट्समैन था जो कर सकता था. और दूसरी जो चीज़ है अब्दुल्ला को थोड़ा सा बार बार आपको, क्योंकि अभी यंग है, ये रियलाइज़ कराना होता है. कई दफ़ा ये टांग जो हल्की सी क्रॉस जाती है ना, क्योंकि ऑन का शौकीन है स्पिनर पे भी, तो ये इसको प्रैक्टिस सेशंस में मैच टू मैच ने इसके साथ बात करनी पड़ती है. यहाँ ही ये रन्स भी करता है लेकिन यहाँ लेग बिफोर के बहुत चांसेस है लेफ्ट आर्म स्पिनर पे भी. और क्रिकेट तक ठीक है, T20 नहीं, क्योंकि इसको खिलाया गया है. उसकी टेस्ट में भी उसने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था, ODIs में भी. सो मेरे ख्याल में इसको सिर्फ 2 फॉर्मेट्स तक इसको मतलब संभाल के रखा जाए. वसीम, दिलशान मधुशंके, व्हाट अ फाइट फॉर श्रीलंका. 21 विकेट्स लिए इस वर्ल्ड कप में उन्होंने. अनबिलीवेबल. ही इज आल्सो वेरी यंग अगेन, अनदर लेफ्ट आर्मर. आई थिंक द रीजन इसकी सक्सेस की जो थी, basically he brings the ball back in on a regular basis with the new ball. Look at his overs in this World Cup, 9 games, 21 wickets, average is 25. That's this day and age is really good. And best I think is 5 for 80. Bit expensive, but over and all this easily could be the find of fast bowler for Sri Lanka in this World Cup for future.
because this guy can play Test cricket, T20, good variations, good slow ball, and bowls around the wicket as well. And I think he's got a very bright future ahead of him. Yep, and with that, let's talk about some of the players that we missed in this World Cup. और आप bowlers की बात कर रहे हैं तो let's सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं नसीम शाह से. Where Pakistan really missed him. Yeah, he did, no doubt. Zabardast bowler, match winner, in good nick, in good form. और उसके नैक है कि वो नीचे से आके एक दो ऐसे मौके पे एक दो चौका छक्का मार देता है, मैच जिता देता है. That's what you call it, a special talent. ये है, ये दो उसने ऐसे मैच जिताए हैं हमें. I think both were against Afghanistan, one in Sharjah Asia Cup. वसीम भाई, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बॉलिंग पार्टनरशिप्स में होती है. और पार्टनरशिप नहीं लगी हमारी ऊपर से. हम शाहीन अगर चलो ठीक है बॉलिंग कर भी रहा है तो दूसरी तरफ से प्रेशर बिल्ड ही नहीं हुआ नए बॉल से. जब ऐसा बॉलर दूसरी तरफ से बॉल कर रहा होता है तो देन आप दोनों तरफ से एज ए बैट्समैन कोई राह ही नहीं लभदी थानू. यू आर फेसिंग अ गाय हु इज बॉलिंग 147 148, सीम भी हो रहा है और सीम से उसका गेंद जो हिलता है और दूसरी तरफ से शाहीन. बिल्कुल. और जैसी कंडीशंस यहाँ पे थी, वी कुड हैव श्रीलंका को एक बहुत बड़ा नुकसान हसरंगा से भी, उसको भी मिस किया इस वर्ल्ड कप. Hashiranga has also missed. Yes, absolutely. Very unfortunate for Sri Lanka. Even they have struggled in their captaincy also, you know. And we spoke about in length today about Hashiranga. Shoaib said that Sri Lanka, when they go back, sit on the drawing board straight away. Captain, straight away. नसीम शाह का ये था कि वो सिर्फ नए बॉल से अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा था. पुराना वो मिड ओवर्स में, डेथ ओवर्स में वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था. जैसे बुमराह है इंडिया के लिए, वो पाकिस्तान के लिए वो काम कर रहे थे. और हमने बड़ा स्ट्रगल किया बहुत स्ट्रगल किया थ्रूआउट में. एंड फॉर श्रीलंका दे स्ट्रगल इन द स्पिन डिपार्टमेंट जस्ट लाइक पाकिस्तान डिड. बट आई थिंक उनके एक दो बैटर्स ने अच्छा किया है कंसिस्टेंटली. कप्तान को कप्तानी मिले, उसके बाद बौखला गया, तहस नहस हो गया, उससे स्कोर नहीं हो पाया, यू नो कप्तानी नहीं हो पाई. सो लॉट ऑफ थिंग्स एंड देन थिंग्स बैक एट द बोर्ड. जो क्रिकेट बोर्ड में पॉलिटिक्स स्लैश जो भी होता है उससे प्लेयर अफेक्ट करते हैं हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में. मे बी वेस्टर्न वर्ल्ड में ना करते हो, हमारे यहाँ उससे असर पड़ता है प्लेयर की परफॉर्मेंस पे, स्पेशली जो टीम में होते हैं, स्पेशली जो हमारे सीनियर होते हैं उन कप्तान वगैरह, ये नहीं पता होता नया चेयरमैन आना है, नया बोर्ड आना है. What future? Just creates too much of a problem. For England, England had not a very good World Cup, but Jofra Archer was missing. Misbah, I mean, he's missing for the last 3 years. Yeah, I mean, he's just missing. I mean, where is he? Give us some idea. Rehab ही चल रहे होते हैं उसके, तो rehab से निकलता है तो फिर पता चलता है फिर इंजरी हो, relapse हो गया, फिर ऐसे ही चल रहा है. मेरे ख्याल में इंग्लैंड को बड़ा नुकसान है. और जो थोड़ी how much they have been investing in him for the last 2-3 years. He's been injured and he's on a ECB. भी दिया है. What is the nature of his injury? I don't know. I think elbow. It's the elbow. Bowling elbow. Okay. और वो एक दफ़ा हुआ था. He recovered. He played for England again. लेकिन वो फिर से उनको दोबारा से वो इंजरी हो गई. तो बट उन्होंने मिस तो बहुत किया उसको. और क्योंकि वैसे ही उनका अटैक ऐसा है कि थोड़े आप करोगे ओवर, थोड़े वो एक ऐसा बॉलर था जिससे यू वुड एक्सपेक्ट एज अ कैप्टन 10 ओवर्स, और 10 ओवर्स में यू वुड एक्सपेक्ट विकेट्स आल्सो. और वो मतलब सेट बैटर्स भी हैं. By the way, he joined England team in this World Cup for training. And then he felt pain again in his elbow. So that's a drawback. मेरे ख्याल में मलिक खेले, मैं खेला हूँ बिल्कुल उधर. और उनका बाउंसर बिल्कुल बहुत स्लो आता है. बहुत स्लो आता है. वो आके ऊपर से ऐसे मारता है और ऐसे ये छिड़क्का जिसे कहते हैं ना पंजाबी में. हम लोग जब 2016 में गए थे तो वो काउंटी से खेल रहा था, तो हफीज शॉर्ट बॉल पे अच्छा खेलता था. तो बाहर से वो न लगता नहीं है तेज जब बॉलिंग कर रहा था. उसने पहला गेंद गिराया पीछे तो कहीं यहीं पे कहीं रह गया, फील्डर तक भी नहीं गया. दूसरा फिर उसने किया, फिर यहीं पे. हम लोग बाहर हैरान थे कि यार ये क्या हो रहा है. मतलब हफीज मिस नहीं करता, स्पेशली पिच भी कोई इतना तेज नहीं था. फिर मैं बैटिंग कर रहा सी तो आ गया, नवा गेंद लग गया. उन्हें इंज कीता बस, मैं थले मैंने को पता नहीं लगा, गेंद शम करके लग. ये ना फर्स्ट टाइम बीपीएल में खेला है बांग्लादेश प्रीमियर लीग में. तो मैं खेला वहाँ पे तमीम इकबाल की टीम से ना. तो खैर ये जल्दी आउट हो गए, कंडीशंस वहाँ ऐसी ही होती हैं. तमीम ने ना बहुत अच्छा खेला इसको. तो मैंने कहा यार तमीम क्या खेला यार, क्या बात है. बाहर आगे मुझे पता क्या कहता है,
कहता है लेकिन क्या पेस है इसकी। तो मैंने कहा तू तो कभी उसको यूं मार रहा था कटें, कभी कुछ कह रहा, मैं सिर्फ बैट ही जाता था, बॉल खुद ही लग जाता था। मुझे नहीं मलिक पता उससे पहले ये हम वेस्ट इंडीज़ की टूर पे गए तो वहाँ पे ये आता था बॉलिंग करने जमैका में, मुझे जहाँ तक याद है ना, मुझे थोड़ा सा नहीं, नहीं, ये ओरिजिनली है बारबाडोस का। मैं बारबाडोस की टीम से 5 साल खेला हूँ। बिल्कुल पाकिस्तान टीम को ये बॉलिंग करता रहा है, ये तो नेट पे बॉलिंग करता रहा आगे पाकिस्तान टीम को। वो फिर उस मैच में उन्होंने बताया कि वहाँ से इंग्लैंड की टीम गई तो ये वहाँ से उधर आया, काउंटी में इसका कॉन्ट्रैक्ट, तो इस तरीके से आया और बॉल किया। इसका पासपोर्ट भी लास्ट मिनट पे हुआ था। चले हो गया। नाउ वी होप टू सी। हमारे पास भी ऐसा एक, मैं सिद्धू पाजी ने एक दफ़ा एक प्रोग्राम में बताया था, वो ही वाज फेसिंग हिम, यू नो, बॉल आई, बॉल निकल गई, थोड़ा सा पीछे, बड़ा तेज़ बाउंसर था, शायद श्रीकांत साहब उनके साथ टेस्ट मैच में खेले, कहते वेल लेफ्ट, कहते वेल लेफ्ट, क्या मुझे तो नजर ही नहीं आया। वैसे एक चीज है वसीम, दिस इज आई मीन इनक्रेडिबल, वो बैट्समैन, मैं सोचता हूँ उन बैट्समैनों पे क्या गुजरती होगी जो आपको फेस करते होंगे और वकार को फेस करते होंगे। सर बचाना है या पाँव बचाने हैं, क्योंकि या यॉर्कर बजना है ते पाँव टूटना है ते सर ते बजनी है ते बंदा No, seriously, good old days, but I don't even remember those incidents long ago. Seriously. You are being modest. Now I जिम्बाब्वे के टूर पे हमने जाना था, तो अजहर महमूद, मैंने और वसीम भाई ने बाद में जाना था, तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, सईद भाई थे, तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे स्टेडियम 2-3 बजे, तो वसीम भाई बॉल कर रहे हैं, अब सईद भाई आए हैं तो आउट स्विंग हो रहा है, तो ऐसे ऐसे ठुमके, अच्छा मेरी बैटिंग आ गई, मैं गया हूँ, वसीम भाई ने बॉल किया है थोड़ा आराम से आके इधर ऑफ स्टंप के बाहर, मैंने पीछे आगे से पंच मारा तो मिडल हो गया। मैंने अब यूं देखा, मैं कहा भाई हूँ वक्की बचानी है अगली। अगला गेंद इन्होंने किया ना, तो मैंने कहा इधर को गया तो फिर तो लग नहीं लग रही, मैं उधर को ही निकल गया तो गेंद एग्जैक्टली यहाँ से गया बीच। सिर्फ ये नहीं था, वसीम भाई की ग्रेटनेस देखें कि डबल विकेट फाइनल आपके साथ आ गया, मैं और इमरान नज़ीर थे, तो अब हम लोगों ने रन्स पूरे कर लिए, 8वां ओवर वसीम भाई का जो है ना, सिर्फ और सिर्फ बगैर आउट हुए वो गुजारना था। सो वसीम भाई की ग्रेटनेस देखे, मैं फेस कर रहा था, मुझे कहा देख तू बचा ले, मैं गेंद तुझे पीछे नहीं कराऊंगा, आगे कराऊंगा 6 की 6 बॉलें, बच गया तो तू बच गया। वाह भाई ये बात है, वो तो अभी भी कहते हैं मैं कराना आगे ही है, तू बच गया तो बच गया। नहीं कराया उन्होंने, वसीम भाई ने नहीं कराया अभी से बॉल। नहीं नेट में पीछे बहुत कम करता था, एक दफा किए थे बिल्कुल नेट पे हमेशा नहीं, जब ये रिबेल हुआ था 93 में, 3 दिन बाद नेट होया सी ना, फिर नेट नहीं आया, मैं तो नेट में कोई नहीं था आता, मैं करते नहीं था आगे। मैं एविडेंस हूँ भाई इस बात का, किस को आपने किए? मैं विटनेस हूँ इस बात, नेट में कभी पीछे नहीं की। नहीं, मेरी एक दफा कमबख्ती आ गई थी, पर्थ में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की लड़कियों की टीम मेरे साथ प्रैक्टिस कर रही थी नेट पे, भाई के हाथ में बॉल थी, 2 दफा हेलमेट पे मारी। देखिए मोइन, अगर देखो जी होवे लॉरी तो शो ना मारे कि हो सकता है, कम ऑन। ये आए 2 कदम से हल्के से, मैं पहले ही पैर आगे निकाले, मैंने कहा 2 कदम से कितनी तेज, इन्होंने आके सिर्फ हल्का सा ये किया, टर्न 2 दफा, मैं कहा चलें जी लेट्स गो बैक। I have seen it myself and experienced it on the batting end and by watching on the non-striker end. ये ऐसी मजाक में आगे, और ये तो बहुत बाद में when he was not playing for Pakistan anymore, तो तितर बितर हो जाता था सब कुछ basically. But man, we're so proud of what you've done Thank for you, buddy. Pakistan. Thank you, and everyone. what a great honor it was for me and for I think all of us to have actually faced you. इन्होंने ज़्यादा कहते हैं, मैं तो इंजी कहता है, but तौबा मेरी भाईजान, तौबा मेरी. We'll take a break here. When we come back, more on the other side. Welcome back to the Pavilion. We have a special edition here before the semi-final. We're looking back at the World Cup, how it went back and how things happened and who are the players that played. और अब बात करते हैं बैटर्स की थोड़ी. Misbah, let's start with you. Who are the batters that have surprised you? मिच मार्श ने, आई थिंक नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि इस तरह के परफॉर्मेंस वो करेंगे, और जिस किस्म के उन्होंने 100 किए हैं, द वे ही इज़ बेसिकली डोमिनेटिंग, आई थिंक दैट वाज समथिंग स्पेशल फॉर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अभी रिसेंटली उनको ऊपर खिलाना शुरू किया उन्होंने, और इस वर्ल्ड कप में एक इंजेक्शन चाहिए था उनकी बैटिंग को। अर्ली ऑन ट्रेविस हेड नहीं थे, और दूसरी तरफ से स्मिथ स्ट्रगल कर रहे थे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट था इनका रोल। अब जिस किस्म का मोमेंटम ये ऊपर से दे रहे हैं, अब 3 बैट्समैन उनके पास ऐसे हो गए ऊपर से इनको मिला के, जिनमें से एक भी खड़ा होता है तो फिर यही होता है कि वो 400 के करीब पहुंच जाता है। नीचे फिर मैक्सवेल है, मैक्सवेल भाई बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। द वे ही इज बैटिंग, आई मीन ही इज सो पावरफुल, फ्रंट फुट पे आके वहीं से ये
हल्का सा खींचा हुआ बॉल उसको सीधा इतनी ज़ोर से हिट मारते हैं और शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल उनको करा नहीं सकता फ्रंट फुट पे। वो टेस्ट मैच में भी अभी देखा ऐसी ऐसी शॉट हैं वो मारते हैं फास्ट बॉलर्स को। आई थिंक the way he's batting is an important player for and he's a big unit. He's a strong boy. He's about 6'5", 6'6", big guy, bicep, and very strong, physically very strong. And I think the reason जो मेरा अपना ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया ने इसको ऊपर लेके आए ओपन मिडिल ऑर्डर में थोड़ा ये वनडे में स्ट्रगल करता था स्पिन के खिलाफ, बट अब ऊपर आके एक दफा खुल जाता है, देन खड़े खड़े छक्के मारता है, like I said, strong boy. इब्राहिम सादरान, Yeah, one of the great find, like जिस तरह उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर बैटिंग की है, जिस तरह फोकस थे नज़र आ रहा था क्लियरली, इवन चाहे फास्ट बॉलिंग हो चाहे स्पिनर्स हो, ही वाज देयर लाइक बहुत ही आउटस्टैंडिंग, ये खूबसूरत एक प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मारते हैं। और जब टाइम आता है कभी ऐसा चीकी शॉट्स भी हैं और डाउन द विकेट भी स्पिनर्स को निकल के खेलते हैं। वैसे आई थिंक एक बहुत बड़ी फाइंड है अफ़गानिस्तान के लिए, बिकॉज ये काफ़ी दफ़ा स्ट्रगल करते रहे इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप गुरबाज के साथ, बट जब से इन्होंने रन करना शुरू किए ना उसकी वजह से इनका मिडिल ऑर्डर भी बेटर हो गया, वो जिम्मेदारी लेना शुरू हो गया और हमने इस टूर्नामेंट में देखा 3-4 दफ़ा फिर उन्होंने चेज भी किए। आई थिंक इज वंडरफुल बैट्समैन, बहुत। हाउ अबाउट सदीरा फ्रॉम श्रीलंका? सदीरा फ्रॉम श्रीलंका, जैसे मिसबा भाई ने कहा कि अब्दुल्ला शफीक को भी एटलीस्ट 500 रन बनाने चाहिए थे, इनको भी 500 के आसपास रन बनाने चाहिए थे। इन्होंने जो है एवरेज उनका ज़रूर 53 का है और 373 रन्स बनाए हैं, बट कुछ ऐसी इनिंग्स में बहुत सॉफ्ट डिसमिसल से जहाँ पे ऐसा लगा कि वसीम भाई भी बात करते हैं कि फोकस लेवल जो था वो वैसा नहीं था। ही इज़ गॉट एवरीथिंग इन हिम, स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं, पेस को भी अच्छा खेलते हैं और अच्छी फॉर्म में थे। लेकिन ये है कि अगर श्रीलंका के कुछ पॉजिटिव्स देखे जाएं तो उनमें ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है भी यंग, he can play for the next few years and I guess it's a good thing for Sri Lanka. Yeah. Talk about bowlers now. Bowlers who surprised. I think straight away जो नाम आता है ज़हन में वो आता है कुत्सी का। कुत्सी। I mean I love this attitude. I love typical South African attitude. कि नेवर लेट गो, हमने आखिरी मिनट तक जोर लगाना है, भागी आना है, कुछ हो जाए, गर्मी है, सर्दी है, दैट्स द एटीट्यूड। आई लव हिज एटीट्यूड, इज गॉट पेस नो डाउट, एंड द बैड न्यूज़ फॉर वर्ल्ड क्रिकेट इज इज गोइंग टू गेट क्विकर। इसलिए थोड़ा भी तेज होना है, अभी तो शुरू किया है इसने। इसके तुनके के बारे में तो कुछ बताया, तुनका रिप्लेस किया है जिस बंदे को उसने, नोकिया को, वो तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था इनकी टीम के लिए, बहुत बड़ा मिस था, बिकॉज वो तो 150 से शुरू होता है एंड ही इज बॉलिंग लाइक ऑलमोस्ट 90, 89. I mean, he's got a very bright future ahead of him. It's all about attitude. And being a fast bowler, this is so important. Okay, fast bowling, little bit of acting is part of your job. And you can't be a nice guy on the field. Off the field, yes, by all means. But on the field, you got to be ruthless and vicious. Were you vicious on the field? I was. I can't use the word I was. मैं था। अच्छा। हाँ, थोड़ा टीवी के लिए too much हो जाएगा, but I was quite mean. Okay. मौला जट कह लेते हैं, चलिए। मौला जट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है वसीम भाई के इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं, I've seen him even in domestic circuit. Domestic first class. अच्छा। मतलब कुछ चौका नहीं Ferocious. It was a habit. It was for a me, mindset. every cricket, चाहे मैं लंकाशायर में खेल रहा हूँ, चाहे मैं PI से आके खेल रहा हूँ, चाहे मैं practice match Pakistan से खेल रहा हूँ against the first class side abroad, but yeah, my attitude was the same. That's the way it should be. Let's talk about another great find, and that is Hansen. Misbah, fantastic. Yeah, bowling really well, batting really well, hits big sixes. वैसे ही उन्होंने लबना एक बड़ा बड़ा काम है माशाल्लाह। वो 7 फुट से वो सामने वैसे ही खड़ा हो तो बॉल तो बाद में देखनी है आपने, पहले तो आप वो जैसे इरफान होता था पहले आप उसको ही देखते रहते थे कि बॉल आना कित्थों है। तो दैट्स आई थिंक द बिगेस्ट एडवांटेज ही गॉट। और वो बॉल जिस लेंथ से आप नॉर्मली बैक फुट पे अब आगे फॉरवर्ड आना ही नहीं बैट्समैन, देखो लगता हो बिल्कुल बैक ऑफ लेंथ जिस भी इनको अब आगे खेलना है आपने, आप वो हाइट की वजह से और द काइंड ऑफ बाउंस ही जनरेट गेट्स, वो आप वहीं स्टक हो जाते हैं विकेट के पास ही। मुझे याद है कि when I first played against Curtly Ambrose, he is 6'8". Yeah. And मैं इतना लंबा बॉलर खेला नहीं था,
मिसबा बिल्कुल ठीक कह रहा है कि अगली लात लग रही, किसी ने ना मेरी अगली टांग को बाल्टी में डाल के ऊपर सीमेंट डाल दिया हुआ है। वो जगह तो हिली नहीं सी रही कि आगे आ जा, थोड़ा आगे आ जा, लग रहा था यहीं आ गया सामने थी। सेम थिंग विद हिम। वो एक लंबा बॉलर हो और फिर पेस भी हो और फिर स्विंग भी हो रहा हो, अंदर भी आ रहा हो, ऊपर से तुनके का भी शौक हो भाई को। बट नॉट ओनली बॉलिंग, आई थिंक बैटिंग भी वंडरफुल ऑलराउंडर। इट्स जस्ट अ ग्रेट ऑलराउंडर। सामने बिल्कुल छिक्के नहीं मारते, इज अ वेरी गुड सामने डाउन द ग्राउंड। अनदर फाइंड ऑफ द वर्ल्ड कप। दुनिया को पता लगा अब लीगों में इनकी काफी डिमांड होगी, बिकॉज़ बैट्स एट नंबर 7 गिव यू 4 ओवर्स विद पेस। वो बल्ला ऐसे हाथ में लगता है जिस तरह से चमचे फड़ के अनार खा रहे हो। है ना, अनार खा के आया पिस्ता, मैं क्या तू की 12 बोतलें खून दी दे के आया। लग रहा है रुमाल भी गिर गया था अनार बॉल में। And Shami for India, he was not in the initial plans for India, but he came and he delivered. Man, boy did he deliver. He delivered और डिलीवर भी तब किया है कि सेमी न्यू बॉल के साथ कि हाँ सामने दो सेट बैटर्स भी आए हैं तो भी जो है ना उनके अगेंस्ट स्पेशली और बड़ी टीम्स के अगेंस्ट उन्होंने जो है वो आउट किए हैं, जैसे इंग्लैंड के अगेंस्ट किए, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट किए, और जितनी अच्छी वो सीम मार रहे हैं, जैसे वसीम भाई ने बताया, मिसबा भाई ने बताया, आई गेस द बेस्ट थिंग हैपेंड टू इंडियन क्रिकेट आफ्टर लूजिंग हार्दिक पांड्या। उनको चाहिए था एक बंदा, वो ऑलराउंडर की सूरत में चाहिए था, लेकिन वो बॉलर, उसने बॉलिंग ऐसी की कि उन्होंने कहा नहीं, दिस शुड बी आवर फर्स्ट चॉइस इन फ्रंट ऑफ एनीवन एल्स। मलिक यही है ना कि जैसे अश्विन को और इसको इंडिया लेके आया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, और वहाँ पे भी उन्होंने मेरे ख्याल 8 के 9 आउट किया 2 मैचों में, तो ही वाज कैरिंग दैट फॉर्म और बड़ा ज़बरदस्त था कि उस फॉर्म को कैश किया उन्होंने इन मैचेस में भी। तो कुछ सोच नहीं सकता था कि इंडिया की कंडीशंस में इस तरह की बॉलिंग होगी, फास्ट बॉल होगी जो वो कर रहे हैं। यहाँ पे मैं समझता हूँ क्रेडिट देना चाहिए आईसीसी को भी, जिस तरह की पिचेस प्रोड्यूस किए इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, यू नो रन्स किए बैट्समैन ने भी, बॉलर फास्ट बॉलर्स ने विकेटें लिए, स्पिनर्स ने विकेटें लिए, यू नो इट वाज वंडरफुल। बट जब भी इंडिया का जहन में आता है तो पूरी दुनिया को ऐसे लगता है कि स्पिन पिचेस मिलेंगी आपको, जाके बहुत बड़ा बड़ा टर्न होगा, मुश्किल होंगे। आई थिंक इट वाज वंडरफुल पिचेस। इतना बड़ा स्विंग हो रहा था, जितना टर्न होता था उससे ज्यादा स्विंग हो रहा था। स्विंग में बोल रहा हूँ कि बैट्समैन ने रन्स भी किए हैं, बॉलर्स, स्पिनर्स ने, फास्ट बॉलर्स ने। नो क्वेश्चन। बाउंस भी देखेंगे, बाउंस बड़ा ज़बरदस्त है, तो इट मींस यू आर गेटिंग ऑल सॉर्ट ऑफ कंडीशंस जिसमें हर कोई जो भी अच्छा करेगा उसके लिए कुछ ना कुछ है। जरूर है कि देखिए इंडियन टीम टॉप पे है, वो इसलिए भी टॉप पे है कि वो भी डिफरेंट वेन्यूज पे खेले, उनके ना बैटर्स ने कहीं स्ट्रगल नहीं किया, सिर्फ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द फर्स्ट गेम वो 2-3 आउट हुए थे, लेकिन वो फिर अगली पार्टनरशिप ही ऐसी 200 रन जाता है तो दूसरा खड़ो। सो इसीलिए हमारे भी यहाँ पे ना डिफरेंट कंडीशंस बनाना बहुत जरूरी है। प्लेयर आपका रेडी होना चाहिए, बॉलर रेडी होना चाहिए, बैटर, स्पिनर सारे रेडी होने चाहिए, क्योंकि हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं। डेवलपमेंट होनी चाहिए। Wasim, your disappointments from this World Cup? The disappointment. I think straight away वो जो नाम आता है वो आता है बांग्लादेश के कप्तान का, शाकिब अल हसन। Yep. एक तो मेरे ख्याल में नंबर 4 in one-day cricket is a bit too early for him. He's an all-rounder. Right. He can bat, he can bowl, number 1 all-rounder in the world, you know, on the ranking, no doubt. He got 186 runs, 186 and 26 averages. I think Mahmoodullah, Mushfiqur, one day की बात कर रहा हूँ 50 over की. They should be batting at 4-5. He should be coming at 6. Yeah. And he's a captain. He's got to control his anger. He's got to make the right decision, because not just Bangladeshi cricket fans, the young generation of cricketing world follow him. He's a match winner and a very nice guy off the field. I remember working with him for KKR. A very good batter, good reader of the game. Again, a very safe fielder. Yeah. He's a proper all-rounder. We've seen in his performance. But again, this World Cup में बांग्लादेश टीम को I think eventually they should realize कि शाकिब के अलावा भी इनको प्लेयर ढूंढने पड़ेंगे। बहुत ज़रूरी है। फॉर इंग्लैंड हम बात कर रहे थे, आर्चर नहीं आए, जोफ्रा आर्चर वाज मिसिंग इन ऑल, बट उधर भी बड़े मतलब मसाइल रहे हैं। बोथ जॉस बटलर एंड मार्क वुड बड़ा डिपेंड कर रहे थे इन पे, और दोनों ने नहीं जो है वो डिलीवर किया कुछ। काफ़ी थी बेस्ट हो भी इंग्लैंड की तो काफ़ी टीम, काफ़ी है, बट आई वुड से जॉस बटलर ने 15 की एवरेज से 138 रन किए इस वर्ल्ड कप में, यू नो, एंड मार्क वुड ने सिर्फ 6 विकेट लिए। इन कंडीशंस के अंदर मुझे लगता है कि वो एडजस्ट नहीं कर पाए। थोड़ा फुटवर्क हमने देखा जॉर्ज बटलर का, कहीं भी ऐसे कमांडिंग कोई इनिंग नहीं खेली है पूरे टूर्नामेंट के अंदर, 15 रन के एवरेज से यू नो वो खेले, और वो चीज़ पे रिफ्लेक्ट भी हो रही थी टीम के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा
इंग्लैंड की टीम इनके ऊपर भी डिपेंड करती है, यू नो। तो फुटवर्क मुझे कहीं ना कहीं इनका इन पिचेस के हिसाब से थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये एडजस्ट नहीं कर पाए, यू नो, जहाँ पे ज़रूरत थी फुल फ्रंट फुट पे आने। बड़ा स्ट्रेंज है कि आईपीएल के एक्सपीरियंस आईपीएल बिल्कुल, बट डिफरेंट Remember, IPL he plays as an opener. जी एब्सोल्युटली। और आप बोल भी रहे हैं उस चीज़ पे, मुझे लग रहा है कि समवेयर आई थिंक दैट लीडरशिप हिट हिम। द प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस ऐसी थी कि सारे जो थे वो इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, फिर उन्होंने मेरा ख्याल है अपने आप से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया था। नहीं, योर मेन जॉब इज़ विकेट कीपिंग एंड योर बैटिंग, क्योंकि जब आप लीडरशिप पे बात आती है तो आपके पास 10 प्लेयर्स हैं जो ऑन द फील्ड हैं, दे ऑल्सो हैव देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मुझे लग रहा है ये उस तरफ थोड़ा सा टिल्ट हो गया ज़्यादा, उसी कॉन्टेक्स्ट में हम बाबर आजम की भी परफॉर्मेंस है, चूंकि उन्होंने भी सिर्फ 320 रन किए 40 की एवरेज से। बिल्कुल, you can relate. much more from him. You can exactly relate. Yeah. Same issue with Babar as well. Yeah, same. The burden of captaincy, Misbah. जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में दोनों तरफ आप कह सकते हैं। अगर आप रन्स कर रहे हैं तो आपकी और कैप्टनसी इसी लिस्ट बेहतर हो में फिर जाती है। बबूमा भी आ जाते हैं साउथ अफ्रीका वाले। और ये बड़ा मुश्किल होता है जब एज ए कैप्टन आप एक दफ़ा प्रेशर में आते हैं, अपनी परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती तो कैप्टनसी भी हिट होती है, और अगर टीम अच्छा नहीं कर रही तो कई दफ़ा फिर आपकी बैटिंग पे भी उसका असर होता है। दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। बाउमा इसलिए नहीं आ पा रहे उस कैटेगरी में क्योंकि इनकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है और इनके आसपास खेलने वाले जो है ना वो बड़े बड़े 100 लगा देते हैं, तो वो छुप जाते हैं, कवर हो जाती है। कवर हो जाता है। इस वर्ल्ड कप से पहले he was in a very good form, 100 भी किया उसने, good nick. He is, and what a fast runner he is on the field, and when you see him fielding, it's like really quick. I thought Moin was Speedy Gonzalez, but he is proper Speedy. Well, talking about Speedy Gonzalez, it's time for Take a Break. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर-ए-आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स इन द एयरवाइज ऐप एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द जर्नी ऑफ द वर्ल्ड कप। यहां तक जो हम पहुंचे हैं, परफॉर्मेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, सरप्राइजेस, बॉलर्स, बैटर्स एंड द डिसअपॉइंटमेंट। सो लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस, एंड आई थिंक hands down the entire pavilion is going to say the Maxwell innings. Yes, that had to be special. I doubt कि ऐसी इनिंग्स कभी दोबारा देखने को मिलेगी। सीरियसली बैटिंग परफॉर्मेंस की बात हो रही है, बैटिंग तो नहीं सी होती। फिर कीजिए जनाब, दसो बचपन में खेलते थे छिक्का, अट्ठा, दस्सा। I don't think so. बैटिंग ये होती है। You know, when we talk about cricket is a game of uncertainty and records are meant to be broken. I doubt ऐसी इनिंग्स मैं दोबारा देख पाऊंगा। जो सिचुएशन थी, जो क्रिकेट गेम की सिचुएशन थी और जो इनकी सिचुएशन थी, क्रैम्स, शुरू में रिवर्स स्लैप, सीधा खड़े खड़े छिक्के, 60 गेंदों पे 100, फिर क्रैम्प पड़े हैं तो भाई 2 हाथों से शुरू हुए हैं, दूसरे हाथ में पड़े हैं, एक हाथ से शुरू हुए हैं। बैटिंग की बात हो This is unbelievable. This is proper stuff of the legends. मैं ना ये जो क्रैम्प्स है ना मैं रिलेट कर सकता हूँ। मैं इंग्लैंड के अगेंस्ट जब मैं टेस्ट मैच में बारी ले रहा था तो मैं 250 के पास पहुंचा, मैं यकीन कर ऐसे क्रैम्प से जैसे ये नहीं एकदम लेट गया हुआ था, मेरा भी यही हालात थे। इसको खैर अपर बॉडी में नहीं क्रैम्प्स आ रहे थे, मुझे सारी जगह पसलियों में इधर उधर क्रैम्प, मतलब मैं यूं हूँ इधर क्रैम्प। यार फिर इन्होंने हमारा 200 नहीं देखा ना। वसीम भाई कहते यार तू फिर मेरा 200 नहीं देगा। तेरी क्रैम्प है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ। मैं 9 घंटे बैटिंग की थी। I know you were there. ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। couldn't move because they were different muscles altogether. I know. From bowling, right? That's completely. दो ड्रिप्स लगी थी तो जाके मतलब मैं और रिलेट कर सकता हूँ। सोचिए उसके बाद उसने 100 बनाए। अबू धाबी की गर्मी थी वो। I remember that match. I was there in the stadium as well at the time. That was just a fantastic. 300 350 हो सकता है। अगर क्रैम्प ना पड़ते तो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे ट्रिपल सेंचुरी। मुजीब को तो बिल्कुल जो है ना कोई याद नहीं कराएगा, कोई नहीं याद कराएगा। जो उसने उसका जाहिद फजल से 2 रन नहीं बने थे, 98 पे वो नॉट आउट चला गया था बाहर। By the way, Maxwell ने attribute किया इसकी ability pre-match batting drill he used to practice 8-9 years ago in BBL. His quote is, one of the things I used to work on before every BBL game, going back about 8 or 9 years, was foot drills, where the first 12 balls I'd face, I'd stay dead still, but try to hit them as far as I could. Interesting. यानी कि बिल्कुल एक जगह पे planted. one off नहीं हुआ ये,
ये हाँ ये प्रैक्टिस करते हैं। I've seen AB डिविलियर्स, वो भी हाँ वो भी यही प्रैक्टिस करता था। वो तो ये भी प्रैक्टिस करते थे कि पैर अगर एक जैसे इन्होंने नहीं बैटिंग की, वो एक ही जगह अपनी जो फीट हैं उनको वहीं रखा हुआ है, एंड देन ही इज ओनली प्लेइंग विद हिज आर्म्स, सिर्फ हैंड्स के साथ। हमारे दौर में पता ही नहीं था यार। अजी द फुटवर्क सोच के फुटवर्क ओए लता क्यों नहीं चल रही तेरी, गेट इट, आई नो दैट्स हाउ इट वाज। मार्करम्स 100 ऑफ 49 डिलीवरीज अगेंस्ट श्रीलंका, आल्सो अनदर आउटस्टैंडिंग इनिंग्स मिसबा। बिल्कुल, उसमें भी बिल्कुल नहीं मारा था उन्होंने। उसमें सारी शॉटें आपको देखने को मिलेंगी, उसमें प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स भी थी, फिर जिस तरह के बड़े शॉट मारे हैं देखे ना, डाउन द ग्राउंड ही प्लेज सो वेल। और अभी जो इन्होंने ये डेवलप किए हैं स्पिनर्स को, ये सारी शॉट्स अब दे प्रॉपर टेस्ट प्लेयर हैं, प्रॉपर ये पुल शॉट, ड्राइव्स, एवरीथिंग, एंड देन डाउन द ग्राउंड देखें। और बड़े पावरफुल किस्म के बैट्समैन हैं, बड़ी फोर आर्म्स इनकी जैसी हैं कि हमारे खिलाफ भी जब खेलने आया तो ऐसी जो पंच करते हैं पता चलता है, एक दफा गेंद ऐसे निकलती है बल्ले से कि जैसे बस आगे निकल रही है। हाँ सही है। एंड देन डेविड वार्नर अगेंस्ट पाकिस्तान, एक दफा उनका जब कैच ड्रॉप हो गया उसके बाद वो भाई पाकिस्तान को बहुत पसंद करते हैं, वो मोहब्बत है उनको। बहुत लकी भी रहते हैं पाकिस्तान अगेंस्ट टेस्ट मैचेस में, चांस मिलते हैं और वो कैच भी करते हैं चांस को। एवरी टाइम यू ड्रॉप हिम देयर इज समथिंग लाइक, बट व्हाट एन इनिंग्स दैट वाज। 163 आई थिंक उसके बाद जिस तरह कैरी किया पूरी इनिंग लेके गए, आई थिंक वो आउटस्टैंडिंग है। आई मीन नज़र आता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, और वो जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है टोटली, यानी आप अटैक पे अटैक करे जाते हैं, जितनी मर्जी अच्छी बॉलिंग हो जाए, यू नो। आते कि यही वजह है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो एकदम ऊपर आई है शुरू के 2 मैचेस के बाद, काफ़ी डाउन थी इस वर्ल्ड कप के अंदर, द वे ही प्लेड थ्रू आउट द टूर्नामेंट, उसके बाद बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली हैं। उनका टफ टाइम जब निकल जाता है ना, फिर वो अगली टीम को टफ टाइम देते हैं। ये उनके बारे में जो है ना, और मैच विनर हैं। इस इनिंग में जो हारिस की पूरी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप की ना, उसका जिम्मेदार वार्नर है, क्योंकि उसने टारगेट किया उसको आते ही पहले ओवर से, तो 2 ओवरों में 32 लगा हुआ था। ऐसे ही है। उससे पहले हालांकि बड़ी ज़बरदस्त उसने बॉलिंग की नीदरलैंड के अगेंस्ट, लेकिन यहाँ से ऐसा कॉन्फिडेंस ख़राब हुआ कि उसके बाद फिर उसके लिए बड़ी मुश्किल होगी बॉलिंग। बट वन मोर आई थिंक, जो इसके बाद अगर कोई इनिंग को याद करने वाली तो मैं समझता हूँ वो एक रिजवान की भी बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग थी। जी हाँ, पाकिस्तान के अगेंस्ट श्रीलंका, that big total, that was also a very special innings from Rizwan. Very special innings, और सबसे उस स्पेशल इनिंग्स का जो चीज़ थी वो ये थी कि पाकिस्तान को होप दी कि हम 345 भी चेस कर सकते हैं, record भी कर सकते हैं हम लोग चेस। So I guess outstanding innings. You know, ये ऐसी ना इनिंग्स देख के वसीम आप मतलब बताएं, यू नो ये देख के आप कहते हैं यार हमारे लड़के कर तो सकते हैं, या यू नो, और ज्यादा जो है ना थोड़ा सा वो दुखता है दिल बंदे का। ये जो पार्टनरशिप थी अब्दुल्ला और रिजवान की, दोनों की, ये दोनों स्पेशल इनिंग्स थी, और द वे दे फिनिश द गेम, that was something special. And then I think another मैक्सवेल के बाद जो किसी की याद आती है, रिजवान की इनिंग्स की बात की, आई थिंक द माइंड straight away goes to Fakhar Zaman's inning against what an innings that was. 11 sixes, उसने लग रहा था बल्ला यहाँ रखा हुआ है, गेंद जितने मर्जी करो। और एवरी टाइम वो मिसबाह आप लोगों ने हमने नोट किया था कि उसके उस इनिंग से बल्ले से आवाज भी अजीब सी आ रही थी, मिडल जैसे मिडल ऑफ द मिडल जैसे कहते हैं ना। I just wonder Wasim, what would have happened अगर बारिश ना होती और फखर जमान खेलते रहते। और ये तो नूरी नाथ का डायलॉग ही हो गया, टक टक दी नहीं नत दी आवाज आएगी। And then you can actually hear it here right again in these highlights. Just वो छिक्के मारने के बाद फखर जमान भी कर रहा होगा ना वसीम भाई, मैं नागा। He should have. He batted like Nag, no doubt about it. And Pakistan was really happy to see him back in the runs and back in form, and you know see him go. And then of course इनका आज हमने शुरू में भी अब जिक्र किया, रचिन रविंद्रा की भी जो सेंचुरी थी अगेंस्ट पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ, आते साथ ही उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर सेंचुरी की। That was also a very और फिर आप किंग कोहली को नहीं भूल सकते, उनकी 49वीं सेंचुरी। हाँ, और कल सेमीफाइनल में कोई
पता नहीं 50वीं भी गाड़ दे। और on the 35th birthday. किंग कोहली की वैसे क्या बात करनी है, वो I know. इतने सारे सॉरी मतलब- किंग नहीं कहते हम उनको, एम्परर कहते हैं। हमने King अब हमारी उनको स्टेज गुजर गई है। एक लेवल ऊपर चले गए। We have taken up one notch up. It's not king anymore. It's एक सेंचुरी और और उस मेकर दिन को वो आप- आउट भी कर गए। उनको गेंद दो आउट कर जाते हैं, कैच नहीं छोड़ते, फील्डर बड़े जबरदस्त हैं। He's a cricketer, par excellence. No मेरे question. ख्याल doubt about में उनका रिकॉर्ड, या हम कहते हैं ही इज़ द बेस्ट प्लेयर स्पेशली इन वाइट बॉल क्रिकेट। मुझे लगता है कि उनको ये भी खिताब देना चाहिए कि चेजिंग में ही इज़ आल्सो द बेस्ट। Yeah, he's the king. I think Ever, that's ever. where he really He's specializes. Out of 49 centuries, Yeah. 41 centuries उसकी chasing के टाइम पे जिसमें जीता है। Wow. 49 And- centuries. So I guess- 49 And that's a true king 41 जो times. मैच विनर हो। मैच विनर 41 Strong मैच king, विनिंग मैच विनिंग इनिंग्स। मैच विनिंग इनिंग्स खेलूंगा मैं, ये जो मर्जी प्रेशर हो मैं बड़ा स्कोर भी करूंगा और टीम को मैं पहुंचाऊंगा। उस बंदे का सेल्फ बिलीफ देखें कि ही टेक्स 15-20 बॉल्स व्हेन ही स्टार्ट्स हिज इनिंग्स, लेकिन जब वो उससे निकलता है फिर वो मैच ही लेके आता है अगले के मुंह से। एक प्लेयर को हम भूल गए इस सारी डिस्कशन में जिसने सबसे ज्यादा सेंचुरीज की हैं इस वर्ल्ड कप में, तो क्विंटन डी कॉक। Oh yes, that's true. Oh, yeah, How can we not remember Quinton de Kock? Somebody did. Yes. But Quinton de Kock also Somebody very did, special. and we're going to ask him why. Why? That's true. That is true. But somebody in production and research forgot to put Quinton de Kock in this list. And और 50 ओवर कीपिंग करने के बावजूद हमारा होता है कहते हैं मैं नहीं करनी है, दूसरा कीपर है उन्हें कराओ। अरे आगे ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल ही छोड़ दिया, ऐसी भी बात नहीं है। But you know, just amazing the way he plays. लेकिन वो 400 कर चुके हैं मेरा, 4 तो वो कौन सी बेस्ट है, ये भी एक बात है। सारी बेस्ट है। ये मिसबा the pull shot that he plays, Yeah, I know. ये कैसे ये elevation देते हैं आप नीचे से मारते हैं ऊपर ऊंचे की? को ऊंचा मारता है। It's a special talent. Apparently I read somewhere his dad, he was quite well off, comes from a good family, well off family. तो उसकी डैड ने इसको नेट बना के दिया, वो घर के पीछे दिया हुआ था when you were young. He used to bat all day, and you can tell. Yeah, of course. Yeah, फुटवर्क He देखे, only scores hundreds. स्पिनर को देखे, इक्वली बेल। इसकी जो बैट स्विंग है वो Bat प्रॉपर swing. गॉल्फ वाली Golf वाली है, golf वाली है। पूरा बल्ला जो पीछे से आके फिनिश होता है। और हाथ भी तेज नहीं चलते। नहीं बिल्कुल तेज नहीं करते, हैंड स्पीड तो है ही नहीं। तौबा, और बड़ी तौबा, हैरत की बात है कि इतनी कम उम्र में इन्होंने जो है अनाउंस कर दिया जी आइंदा नहीं खेलेंगे। हाँ ये भी इसने वो कहा होगा ना जो काउंटी क्रिकेट में गोरे वेस्टर्न कहते थे प्लेयर हमारे, वो क्या? कि one day वो कब woke up, opened up the hotel window, pulled my curtains, saw the sun, and and I said thought, that's it, I've that's done it my job. I'm gone. हमारे यहाँ कैसे होता है, मैं उठा सुबह, हमारे यहाँ तुसी कर भी दियोगे कि मैं रिटायर होना, ताड़ी पुप्पी दा फोन आएगा, ओए रिटायर नहीं होना। ये भी आपने वर्ड लिखना है, रिटायर। मैं भी ऐड कर दो vocabulary, the vast vocab is going on and on. आपने बड़ी वसीम बात की कि क्विंटन डी कॉक के वालिद ने उनको घर में नेट बनाकर दिया हुआ है। आपको पता है मिसबाह उल हक ने अपने बेटे को भी नेट बनाकर दिया हुआ है घर के अंदर, और बॉलिंग मशीन भी है उसके अंदर। आई होप ही प्लेज लाइक क्विंटन डी कॉक वन डे फॉर पाकिस्तान। लेकिन ये जाने ही नहीं ना देते बेटे को पीछे नेट में, उससे बात ही करते रहते। मैं तो वैसे ही आधे दिन साल के मैं घर पे होता ही नहीं हूँ, तो ऐसी बात नहीं। ये भी घर वालों की स्ट्रेटजी है, आपको घर भी नहीं रहने देते। Let him be outside. Well done, well done. With that, we're going to take a break here on the Pavilion. When we come back, there's more on the other side. Stay with us. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर-ए-आलम, आप देख रहे हैं Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup. Today is a special edition of the Pavilion. We are looking back on this World Cup journey. With me, of course, I have in the Pavilion the four fantastic panelists who've been here with us throughout this journey. I've got Shoaib Malik, Misbah Ul-Haq, Moin Khan, and the great Wasim Akram. Let's talk about the most memorable bowling stints that we've seen in this World Cup. Wasim, what is yours, the first one? I'll start off straight with Shami from India. क्या ज़बरदस्त बॉलिंग किया, 4 आउट 5 आउट 4 आउट 5 आउट, और मिसबा ने एक्सप्लेन किया अर्ली ऑन के विद सेमी न्यू बॉल, जो कि सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में बड़ा मुश्किल है करना। ये न्यूजीलैंड वाली उनकी 5 विकेट्स है, बड़ी जबरदस्त पेस है, बैक लेंथ इज कंसिस्टेंट, वो जो हॉट एरिया कहते हैं हम, बैक ऑफ अ लेंथ विद इन द स्टंप्स, गुड यॉर्कर, रन्स इन अराउंड द विकेट, ओवर द विकेट, दिस शोज इज क्विक। ऐसे जो बॉल निकलता है, ये भी देखें पूरी बल्ले पे नहीं आई, और
लेग भी फोर किए हैं, स्लिप्स लगवाई हैं, बोल्ड किए हैं। ऐसा नहीं है कि बैट्समैन ने जो है बाउंड्री पे सिवाय एक जो हम लोगों ने रचिन का वो देखा जो मिड ऑन पे कैच हुआ, सो आई गेस great And then of course he got spells 4 he's wickets against England and Lucknow as well. में भी 4 विकेटें हासिल की And I mean he is in prime form. I mean the whole Indian team is in, everybody is chipping in. और ये इसने जो तंग किया है इसको, what's his name, बेन स्टोक्स को जिस तरीके से आउट किया, बीट एंड देन ब्रॉट वो अपने आप को रूम दिया, फॉलो किया डंडा। 10-100 थे इनके आदिल रशीद के। ये एक्चुअली हम सारी मेमोरीज की बात कर रहे हैं, बहुत सारी तो ये वाली भी हमारी मेमोरीज है जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। आपको किसने बताया था ये रिकॉर्ड? मैं कमेंट्री करता हूँ जब बैठते हैं, स्टैट वाला बंदा स्टेट अवे की कहता है अब तो पर्ची आती है ना, बैठा है तू मुझे पर्ची पास कर, मैं अब कमेंट्री कर रहा हूँ ऐसे करके। यस वेरी गुड बॉल डिलीवरी, और यस आदिल यू गॉट 10 100 ही कैन बैट। आज तक वो बैटिंग नहीं आई सामने। अब अगर आ गए ऐसे स्टैट्स आपके पास कमेंट्री करते हुए, तो आप बोलेगा इन स्टैट्स में प्रॉब्लम है। आई विल आई थी वैसे नजर। मैं कमेंट से रिटायर हो जाऊंगा। टेस्ट मैच बचा गया था ऑलमोस्ट दुबई में आप लोगों के खिलाफ। सेकंड लास्ट ओवर में जाके So let's did not फंस गया थी भाई। So let's don't make fun of it। पता लगे अगले मैच ही 150 कर गया। सेव करने जा रहा था मैच। Tabraiz Shamsi 4 wickets against Pakistan. Moin, what do you thought about that? Expected. We all said that, yeah. Actually we did. प्री मैच में हम लोगों ने बात की थी कि ये तो होगा ही होगा। पाकिस्तान जो है वो आखिरी परफॉर्मेंस दी। ये आखिरी के बाद वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ना थोड़ा सा वसीम भाई को ना देखना चाहिए, क्योंकि वसीम भाई ने कहा था खिलाना शम्सी को। I know, but good. और ये जब ये एशिया कप में खेले हैं कुलदीप को भी मैंने तब भी क्या मेरा पिक प्लेयर वही मैंने पिक किया था सुबह, कुलदीप, because Star was talking about Virat and big names like Rohit Sharma and all for the World Cup, ये करेंगे, गिल का नाम आ रहा था, स्काई का आ रहा था, but then I said guys can somebody talk about Kuldeep Yadav, ये तुम्हें वर्ल्ड कप जिताएगा मिड ओवर्स में। That's how it has been. He's been, you're right, absolutely right. But it wasn't only Tabraiz Shamsi, the wrist spinner, who troubled Pakistan. उधर Adam Zampa भी साढ़े गले पे गया, took 4 wickets against us, Misbah. पता नहीं वो रिस्ट जब घूमती है तो हमें पता नहीं क्या होता है, हमारी आंखें भी घूम जाती है साथ। तो ब्रिज स्पिनर्स को जिस तरीके से हम खेल रहे हैं 2019 वर्ल्ड कप से ये चल रहा है, जो सबसे बड़ा मसला है कि पिक नहीं हो रहा है। जो ये सारे बॉल आप देखें सीधे बॉल या गुगली है, वो कोई समझ नहीं आ रही। बट ज़ैम्पा, मिसबा भी टॉकिंग अबाउट ज़ैम्पा, पहले 2 मैचों में हमने सब ने कहा कि इनका टीम का कॉम्पोजिशन कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, और उसके बाद स्ट्रगल्ड, उसके बाद ऐसे 4 आउट 5 आउट 4 आउट, मिड ओवर्स में गॉट हिज मोजो बैक, गॉट हिज लेंथ बैक, गॉट हिज लाइन बैक, मिडल ऑफ द स्टंप्स, एवरी डिलीवरी वेरिएशन फ्रॉम द एंड देन ऑफ कोर्स टूर्नामेंट के दौरान आप इस तरह वापस हो, बड़ी बात। वर्ल्ड कप के वो भी ऑस्ट्रेलिया ने पैनिक नहीं किया 2 मैचेस हारने के बाद, इंग्लैंड ने पैनिक कर दिया। तो देखें they haven't qualified for the last 4। पैनिक तो हमने भी नहीं किया अपने स्पिनर्स पे, लेकिन किया ना मिसबा का ये शिकवा रहेगा कि हमने अपने स्पिनर्स के लिए पैनिक नहीं किया। नहीं किया ना पैनिक, नहीं मुसलसल पॉइंट आउट कर रहे थे कि हमारे स्पिनर नहीं, वो जो थे अब वो करते रहे, रद्दो बदल होता था। दोबारा जरा करना, रद्दो बदल होता था। Good. I like that. All right, folks, great memories that we've had here, but the best memories that we've had in the pavilion are the ones that we've had together. Absolutely. Yeah, they were the most Won't miss it for anything. No, I think that इसने मुझे तंग किया रोज ऑफ, जो घर से घंटा हम इकट्ठे आते हैं, एवरी डे जाते हैं। चले फाइनल के बाद आपको कुछ बचा ले। आप लोग जितनी बसेस चलती हैं ना, या ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आप उनको नए रास्ते बता सकते हैं। मोइन भाई ने आपको इतने बता दिए। मैंने 36 रास्ते एक ही जगह पे इधर चल लो, मैं कहीं एक रास्ते तो क्यों नहीं जा सकते? फिर उसमें मुझे फिर गाना याद आता है, अगर से नाराज होता है। आज तो बनता है वो गाना यार मेरे से। कुछ बातें बचा ले, 3 मैच है, बस कर दे। कोई आज फाइनल नहीं है। नहीं आज फाइनल नहीं है, लेकिन मेरे बोल थे जेड़ा ना एक होता है ना प्रोग्राम में चलाना, समझो ना प्रोग्राम तो बाहर ना बिरयानी है, असल में बिरयानी का चक्कर है सारा। वो मुस्कुराहट तो देखें मिसबा की, भाई को भूख लगी है। मिसबा की मुस्कुराहट पे नजर डालें आप, जरा मुलाहिजा करें। नहीं फिर चुप बिरयानी।
All right, we will get down to that. Tomorrow is the big semi-final. It is India versus New Zealand. कल आपके लिए ये मैच बराह रास्त से गिनाएंगे और कल सुबह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. ये आपकी स्क्रीन पे आइडेंट आ रहा है. This is how it's going to be. It's India versus New Zealand. This is going to be the game. मुंबई से आपकी खिदमत में 1:30 बजे आएगा. हम आपकी खिदमत में 12 बजे यहाँ पर स्टूडियो में दोबारा हाजिर होंगे. Good luck to both the teams. This is going to be a really fantastic thing. So my production is telling me कि थोड़ी देर और बात कर लें आप, क्योंकि हमें थोड़ा सा टाइम और निकालना है. Sure. तो फिर Let's talk about Lahiru Kumara. Then he got Lahiru Kumara is one guy that we left with. consistent नहीं खेला श्रीलंका से, but I suppose उसकी he is good with new ball. He's got pace, but उसको end में problem होती है. Even T20 में भी वो अभी तक सीखा नहीं है. But I think कोई plus देखना है तो his spell was against England 3 for 35. Otherwise Sri Lankan cricket they struggled. Like I said early on, he bowls well with the new ball, but he gets trouble when he comes in the last 6 to 8 overs. वहाँ पे T20 में काफी प्रकाश पड़ती है भाई. And I think Sri Lankan cricket again had to go back. They have to pinpoint their players. They have a young side. Of course, Hasranga is the answer to them. Today was. Yeah, he comes back and as Shoaib says, उनको कप्तान बना देना चाहिए. सबसे पहले उन्हें कहा टेस्ट क्रिकेट की रिटायरमेंट वापस लें ताकि वो टेस्ट क्रिकेट में भी आए. बिकॉज अभी 25-26 साल का है. उसको ज़रा प्यार करें, प्यार से रखें. वो मैच विनर है, वो नेचुरल लीडर है. अकॉर्डिंग मैंने भी उसको देखा, शोएब ने भी देखा उसको. Yeah. So lastly, the best tongue twisters for all of you. Yeah. शोएब, आपका फेवरेट कौन सा रहा है इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर? टंग ट्विस्टर रे वाले जितने भी है ना आर वो ज़रा फंस जाता है. जैसे रेस्ट, प्रैक्टिस. ये कोई टंग ट्विस्टर Tongue twister जो हमने है. हमारे वाले जो हमारे सिग्नेचर वाले टंग ट्विस्टर्स हैं. मुझे ये बहुत फनी लगता है. प्रॉब्लम Problem is not tongue twister. That's a thing. Problem. For me, the most difficult was Piddi Pulchune. Oh, from that. Yes. Tongue twister. From that I guess that Tattoo. Yeah, tattoo. टट्टू में क्या चीज में प्रॉब्लम है आपको यार? चिट्टा टट्टू कोड़ी टपया, टप चिट्टे टट्टुआ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? चिट्टा टट्टू कोड़ी टपया चट. मैंने बोला ना आपको इसी में प्रॉब्लम है. यही बात की शेबी ने. No problem. हमारे एक दोस्त ने क्या से क्या ना क्या कहना वाड़े वाड़े मैं कहना. अब मैं कह नहीं सकता उसने क्या कहा था. शुक्र है मेरा इज्जत वाला निकला है. मोइन आपका यही है. यही है, तो बोल के बताया ना जरा. चिट्टा टैटू कोड़ी टपया. हाँ. टप चिट्टे टैटुआ. इतना तोड़ के टप सोच लूं चिट्टे. ये तो मोइन भाई एक अभी आपने बोला एक कल दोपहर में एक उसके अगले दिन तेज बोले ना. चिट्टा टैटू कोड़ी टपया टप चिट्टे टैटुआ. कांच बोल रहे थे. Well done. And Misbah for you. आसान वाला. को ना गोश्त पिद्दी. चिच को चिच गंडेरियां. दो तेरियां दो बेरी. Fantastic. And with that, I think, gentlemen, I'll let you go because we've got to come back for the semi-final. Super excited. It's going to be a great game of cricket. We're going to see from Mumbai. कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे. Shoaib, thank you very much. Moin, thank you very much. Misbah, thank you very much. And Wasim, thank you very much. Folks, we will see you right here in the Pavilion, 12 noon tomorrow. All set for the first semi-final, India versus New Zealand. Till then, take care of yourselves. Good night.